हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 17 नवंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। पारादीप पोर्ट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो इवेंट हुआ था, मैं उसका कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। Odisha has a rich maritime heritage dating back centuries. From its early days as a small fishing village to evolving into a modern and bustling port, Paradip has played a pivotal role in India's trade and commerce. The port has been instrumental in facilitating the growth of industries, boosting regional development, and serving as vital cog in the nation's economy. Paradip Port serves as the largest major port of India that handles both EXIM as well as coastal cargo. The port caters to a massive hinterland of central and eastern India. The port is well connected with the National Highway 53 and the State Highway 12. Similarly, it has a well-developed rail connectivity and industrial and mining hubs. The port has made rapid strides to become the #1 major port in the country today. In the last financial year of 2023-24, the port handled the highest cargo volume of 145.38 million tons among major ports, contributing to nearly 29% of the total incremental cargo growth by the major ports. Paradip Port has risen as a standout in the Indian maritime sector, achieving accolades and setting remarkable records, showcasing its dedication to excellence. Sagar Shrestha Samman 2023, bestowed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has awarded Paradip Port for 3 categories. Additionally, the port has received the Port of Operational Excellence title at the Global Maritime India Summit 2023, affirming its steadfast commitment to the highest standards in maritime operations and efficiency. With an estate sprawling across 6,285 acres, Paradip Port has state-of-the-art cargo handling equipment and facilities to handle a diverse cargo profile. Presently, the port is equipped to handle the highest rated port capacity of 289 MTPA that includes 4 general cargo berths, 5 mechanized coal export berths, 1 mechanized coal import berth, 3 mechanized iron ore and pellet handling berths, 2 oil jetties, 3 single point mooring SPM for crude oil handling, 2 captive fertilizer berths for PPL and IFCO plants, 1 clean cargo terminal and 1 ro-ro jetty. The port has a 12-kilometer navigational channel with 300 meters width and has a turning basin of 520 meters in diameter with an 18.1 meters deep approach channel that serves the port. As an all-weather port, it operates round the clock 24/7 on all 365 days of the year. 4 important C's have guided the journey of Paradip Port in becoming a dominant player in the maritime sector. These 4 C's are capacity enhancement, cost efficiency, customer-centric approach, and corporate environment responsibility. The port is very cost efficient and offers the lowest vessel-related charges on bulk cargo among all Indian and neighboring international ports. The Western Dock project of 25 MTPA capacity with Cape Vessel Handling Facility has already been awarded and slated for completion in 2 phases by 2028. This will enable the port to handle Cape vessels, thereby reducing the logistics cost substantially. The port intends to award 2 new berths in Northern Dock Complex and 1 new berth in South Dock Complex by 2025, which will handle iron ore or pellets, steel and containers. Further,
port modernization plan includes total mechanization of 4 existing semi-mechanized berths to improve productivity and logistics. As targeted in the Maritime India Vision 2030, Paradip will become a mega port with a capacity of more than 400 MTPA. This will open up huge opportunities for investments in capacity augmentation and modernization of the port. Under port-led industrialization, Smart Industrial Port City project, Paradip Port aims at becoming a self-contained city and has reserved over 700 acres of land for port-dependent industries. Under this, investments to the tune of $1 billion have already been secured. Adopting to new technologies to increase ease of doing business has enabled Paradip Port to more custom-centric and become a smart port. The port has embraced digital technologies like NLP Marine, Enterprise Business Solutions, e-office, and RFID QR code gate systems integrated with unmanned weigh bridges. These digital solutions enable real-time tracking and monitoring of cargo, reducing paperwork and streamlining logistics processes. Due to the nature of cargo being handled at Paradip Port, its immediate focus has been on Swachhata and green ports initiatives like the port plans to develop exclusive green hydrogen and green ammonia berth for its export and bunkering with 5 MTPA capacity to be awarded by 2026. Paradip Port plans for setting up 10 megawatt solar power plant by 2026 to power its entire operations through renewable energy. 3 sewage treatment plants with a combined capacity of 6.5 MLD are currently operational. The treated water from the STPs is utilized for dust suppression in cargo handling areas and for gardening purpose. As part of greenification of the port, it has set an ambitious target of maintaining 1 million tree coverage by 2025. And several other dust control measures like mist cannons, truck tire washing systems, sweeping machines are put in place to reduce dust emissions. Based on its strategic location, state-of-the-art infrastructure, modernization, cost-efficient and customer-friendly services, Paradip Port will cater to the needs of all present and upcoming industries in the hinterland. Paradip Port today defines the aspirational dynamism of the East. It symbolizes the pride of India on the East Coast as a global face in international shipping. Together, we navigate the tides of progress, ensuring a sustainable legacy for generations to come. Paradip Port, sailing towards sustainability with a vision as vast as the ocean and a commitment as deep as its depths. शुभेच्छा जनावुच्छी ಈ ಪೋರ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ आज यही विशेष दिन रे ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझींक सदैव उपस्थिति पारादीप बंदर वासी को गौरवान्वित करिछि हमारा मुख्यमंत्री श्री महोदय मोहन चरण माझी अपनंकर सरलता वो कार्यशैली द्वारा अपन कोटि कोटि बढ़ेंगे पाई एक जीवंत उदाहरण उनको धन्यवाद वो प्रेरणा पालक अछि पोर्ट के चेयरमैन है सर साधारण लोकंकर उन्नति एवं राज्य विकास पाए आप लोग को उड़िया समझ में नहीं आता अपन अवदान जन सुना महोदय अपन दृढ़ नेतृत्व एवं दूरदृष्टि खूब शीघ्र ओडिशा को एक नंबर राज्य भावरे परिचित करबे एतरे संदेह नाही पारादीप संदेहवासी के तरफରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବନ୍ଦର ସହରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ये तेरे तेरे कौन सार उड़ीसा के नहीं है आप लोग शिक्षा एवं दक्षता विकास मंत्री श्री संपत चंद्र स्वाई को एवं मान्यवर संसद जगत सिंहपुर श्री विभू प्रसाद राय को यही अवसर में सदैव उपस्थिति एवं प्रेरणा पाए स्वागत करुछु
पारादीप बंदर शुभ कार्तिक पूर्णिमा अवसर वैदा बंधन तथा बंदर दिवस पालन करता है। यही पर्व राज्य प्राचीन नव वाणिज्य एक शहरे कार्यक्रम है किंतु यही बंदर गत 58 वर्ष रिकॉर्ड को अतिक्रम करी गत आर्थिक वर्ष देश एक नंबर बंदर हुई। यही गुजरात विभिन्न प्रकार गमनागमन व्यवस्था सशक्त कर मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करी मटनचिपी से यही भित्तिप्रस्तर स्थापना कार्यक्रम 18 बांकी पाखे गोटे ब्रिज बनिया हम नहीं धन्यवाद वर्तमान दैनिक प्राय 3000 ट्रक यातायात करुवा बेले क्रमशः बढ़िबार लगी ट्रक संख्या। वर्तमान 50 वर्ष अधिक पुराना 18 बांकी 2 लेन पोल बंदर परिवहन अंचल सह माछ धरा जेटी और महानदी संगम स्थल को संचालन करुथिबारु प्रतिदिन यातायात रे व्याघात सृष्टि करुछि। एहार समाधान पाई पारादीप बंदर द्वारा 24.89 कोटी टंका व्यय अटकल 3 लेन विशिष्ट एक नुआ 500 मीटर दीर्घ एवं अधिक भारी यान क्षमता संपन्न पोलर निर्माण। एथिरे पदचारी पाई रास्ता सहर विशिष्ट पोलर होछि भित्तिप्रस्तर स्थापना। अभिनंदन करताली पारादीप परिवार में सुरक्षित पारादीप पोर्ट टाउनशिप रे जोड़ी होबाकु जाउछि एक नूतन अध्याय। पारादीप बंदर और बीपीसीएल सहभागितारे बंदर अंचलर 7000 रु अधिक घर को मिलिबो पाइप जोगे रंधन गैस बा पीएनजी। बंदर अंचलर लोकको एबे गैस सिलिंडर पाई अपेक्षा करबाकु पड़िबनी कि रहिबनी गैस सरिजिबार भय। ठीक पाइप रे पानी आसला परी घर को आसब रंधन गैस ताहा भी 40% कम मूल्य। यह अत्याधुनिक व्यवस्था लोकों जीवन धारण मान में उन्नति आने सह सेवानक आर्थिक स्थिति करिब सुदृढ़। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्य प्रतिटी घरे पीएनजी सुरक्षित ईंधन और उत्तम जीवन। आम प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कर कमल आज ये पीएनजी प्रकल्प होउछि भित्तिप्रस्तर स्थापना। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम प्रधानमंत्री का स्वप्न हर घर में पीएनजी सुरक्षित ऊर्जा बेहतर जिंदगी को सब परिवार सब पारादीप माटीर मान्यवर विधायक तथा शिल्प दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त संपत चंद्र स्वामी महोदय, मान्यवर सांसद जगतसिंहपुर डॉक्टर विभू प्रसाद तराई महोदय, अध्यक्ष पारादीप बंदर श्रीयुक्त पीएन हरनाथ महोदय, हमको पता नहीं है पारादीप इससे पूछ के आपको बताएंगे। हमारा मोहन बाजी सर मिनिस्टर मोहन बाजी सर स्पीच दे रहे हैं। अति प्रिय समस्त भाई भौणी मैंने आज बन्याक अवसर में उपस्थित समस्त भाई भौणी मान को आउ थे शुभेच्छा और अभिनंदन सर सबको बधाई दे रहे हैं। सब लोग इधर गैदर हो रहे हैं कोई कल्याण महोत्सव में, इसलिए सीएम सर सबको अभिनंदन जना रहे हैं। वही तो बंदारण और बालीयात्रा ओडिशार प्राचीन नौवाणिज्य इतिहास सह संपृक्त तेणु यह एक भिन्न एवं स्वतंत्र महोत्सव से पूर्व गौरव इतिहास मन पकड़ापी पारादीप बंदर कर्तृपक्ष गत 3 दशंधि धरी यह उत्सव महाआडंबरपूर्ण भाव में निरविच्छिन्न भाव में ये अंचल समस्त लोक मान कार्यक्रम कर पारादीप में बंदर महोत्सव इम्पोर्टेंट है
हर साल मनाया जा रहा है, वही सेम माझी सर बता रहे हैं। समस्त आपको अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ। सबको शुभेच्छा अभिनंदन जना रही है। बंधुगण, ओडिशार पूर्व नाम होची कलिंग। ओडिशा का पहला नाम कलिंग है। परंपरा देश प्राचीन, ये पाखापाखि 2500 वर्ष पूर्वर ये प्राचीन नंगालिंग परंपरा ऐतिह्य ये माटीर वीर साधक पुओ मानकर दुस्साहसिक दलयात्रा सह पृथ्वीर विभिन्न भूखंड सह बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया, साधव श्रीलंका, साधव बेटे 7 समंदर पार होके जावा सुमात्रा जाकर वाणिज्य करके वीर साहसिक साधक सोना चांदी अलंकार माणिक्य रत्न सब लेकर आ रहे थे, इसलिए मैं सार बता रही हूँ। अनप्रसु एवं वैभवशाली आज मध्य से देश मानकरे यदि केवे आपण से देश मानक जाइथिले सेही जावा सुमात्रा बाली बोर्नियो इंडोनेशिया अगर आप लोग को जावा सुमात्रा बाली गया होगा धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव आपण माने से माटी रे से जगह रे आसी आपण अनुभव करि पारिबे एवं तार चिन्ह आपण माने देखि पारिबे अनुभव करि पारिबे एकदा कलिंग सागर कोरे पालनपड़ा तत्व ये माटीर विज्ञानी साधव गणित कार्तिक पूर्णिमा तिथि अर्थात आज का दिन में पवित्र कार्तिक पूर्णिमा का दिन में साधव बेटे वाणिज्य करने के लिए बोईत में जा रहे थे, इसलिए आज का दिन बोईत बंधन महोत्सव उत्सव में पालित किया जाता है। वही सेम सर स्पीच में सात दरिया पारी दक्षिण पूर्व एशिया महादेश एवं विभिन्न देश किंतु ये पृथ्वी बड़ा विचित्र ये प्रकृतिर बेले बेले कहा केते दाऊ साधे प्रकृतिर नियम भितर प्रकृतिर ये जहाँ धोई जाइए आज निश्चित एवं से आज ये मन पकड़ापी एवं से मनोरमा मुहूर्त को जिते आम मन पकाउं पवित्र कार्तिक पूर्णिमार काकर भेजा कौन सकाल बेल कदली पाटुआ बोईत बंधन कर आज आम से हजार हजार वर्षर पूर्व इतिहास को पूर्व ऐतिह्य को पूर्व परंपरा को मन पकई आम कदली पाटुआ बोईत और बंधन कर आज तार पारंपरिक ये कार्यक्रम भितर आज ये पारादी बंदर परिक्रमतार उत्सव आज पालन कर पारादीप नाम स्मरण कले प्रत्येक ओडिया भगवान एक केवल स्मृति हुए इतिहास पुस्तक अभिक्रयण करने चित्र विभाग हुए समुद्र उतार पवनीवाला भितर केमुद्र देश जावा सुमात्रा काम्बोडिया एवं चीन को दलयात्रा कर माँ भगवान उद्देश्य मानसिक पुनर्वसन स्वदेश प्रत्यावर्तन कलिंग संस्कृतिर प्रसार प्रचार प्रसारित करेंगे आम संस्कृति आगे से पारादीप अंचल डिफुंगा चिकागो पुरी कोणार्क चांदोली बालेश्वर चेन्नई मधुमता बंदर अभिनव साकार समाज पूर्व बर्माने प्रतिष्ठा हुई पारादीप बंदर 1962 की घोषणा दिन बंदर महोत्सव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए कितना जनलहरी है। बाहर चला जाएंगे, देखिए वहाँ से
देख लीजिएगा अच्छे से पारादीप बंदर, सीप देखिएगा, भारतीय तटरक्षक को। मिस्टर अचरिया वहाँ चले गए हैं। चलिए 20 की ड्यूटी है, जल्दी चला जाएगा। यहाँ पर ये देखिए चलो हमें कोर्ट में देखिए सीट देखिए, देखिए पूरे पास में से सीट देखिए। ये पारादीप बीच, ये बीच में आकर सीप रहता है बाहर से, बहुत दूर दूर से, बहुत ये से आता है। जावा, सुमात्रा, बाली, देखिए सुरेंद्र साई सीप, मतलब सबका पर्सनल सीप है। बलभद्र, लक्ष्मी, सब सीप का नाम है। चलिए मिस्टर आचार्य 20 की ड्यूटी जाएंगे ना, इसलिए मैं सुबह 4 बजे से आ गई हूँ। 3 बजे उठकर काम करके चलिए घर चलते हैं। हम लोग अंदर गए थे, अभी बाहर जा रहे हैं। 4 नंबर गेट है, फायर स्टेशन। अरे सेब तो पत्थर से ये एग्जिट गेट, ये एंट्री गेट। मिस्टर आचार्य गाड़ी निकल कर आ रही है, हम यहाँ से जा रही है, बाहर जा रहे हैं। चलिए बाहर जाएंगे। गॉट इंडिया ऑन मिनिस्टर। चलिए यहाँ वेट करते हैं, मिस्टर आचार्य गाड़ी लेकर आ रही है। एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है। यहाँ इलेक्ट्रिक सिविल मेंटेनेंस ऑफिस से हम एक बार आए थे मिस्टर आचार्य के साथ। आ गया हमारा एरिया। भैया लोग सब कलिंग बिहार कोस्ट गार्ड का भैया लोग क्यों सामने में लाइट जलाकर चल रही है? गाड़ी पर ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक? ओहो, हमें नहीं मालूम है। हम गाड़ी में बंद हो, मैं बोल रही हमारे गाड़ी में भी ऐसे सच्ची में? ये कंपनी से सिम नहीं था, स्विच मारिया को पड़ी। तो ये भैया की गाड़ी में क्यों नहीं है? ये पुराना गाड़ी। अच्छा, अरे मुझे नहीं पता, मैं कल 2 भैया को टोक दिया है। धीरे धीरे धीरे। कम गाड़ी जरूरी है। देखिए रेसिडेंटल एरिया, कोस्ट गार्ड का रेसिडेंटल एरिया। हमारा गाड़ी में भी चलता है। देखिए रुई बनाने वाला भैया है, गद्दा बनाने वाला भैया। मैं कल 2 भैया को टोक दिया, आपके सामने में गाड़ी चल रहा है। अरे सबके सामने में गाड़ी चल रहा है, इसमें मुझे नहीं पता था। नया गाड़ी का सब चल रहा है, पुराना गाड़ी रह रहा है। अच्छा, आपका गाड़ी में चल रहा है अभी? मेरा जल के अच्छा, देखी ना? नहीं मैं नहीं देखी। आ गए हमारे कमांडेंट सर के ऑफिस। सब लोग पूर्णिमा है इसलिए सब घूम रहे हैं। कहाँ कहाँ इधर
प्लांट बन रहे हैं, इधर सड़कों पे आगे से 3 गेट में भैया ड्यूटी में है। आज से 3 दिन छुट्टी है, इसलिए सब लोग घूम रहे हैं। चलिए हमारा घर। सुबह 4 बजे गए थे, अभी 10:30 बज गया, अभी घर रिटर्न आ रहे हैं। हमारा दर्शन प्रवीण को देख लीजिएगा। नमस्ते। मैं टाटा कॉफ़ी ग्रैंड प्रीमियम पीती हूँ। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। बाय बाय।